Wow Perfect classes. In this video, I will discuss next chapter, that is fractions and decimals. Fractions and decimals. What is fraction? Fraction is a number which represents part of a whole, like 3 by 4. That represents the three parts when whole is divided into four equal parts, and 4 is called denominator. Here 3 by 4. 3 means 3 parts of, this means whole, 4 parts. Means, for example, you have given this diagram. Here 4 parts, 1, 2, 3, 4. Out of these 4 parts, 3 parts are filled like this. Okay, this is a fraction. When we write this fraction in decimal form, that is known as decimal. How? We will divide 4 by 3. 4, 0, 0. Take point and take 0 here. 4, take point here. 4 7s are 28, 0. 4 5s are 20. You can see here 0.75. This is a decimal number, and this part is this type is called a fraction number. You can say fraction can be proper and improper. For example, you have given 3 by 4. This is a proper fraction. If this is given 4 by 3, this is a improper fraction. Means when numerator is less than denominator, that is proper fraction. When numerator is greater than denominator, that is called the improper fraction. From this line, above value is called numerator, and from this line below, that is called the numerator or denominator. Or in Hindi you can say from this above line, that is called ansh, and below this line, that is called har. Or you can say fraction is a number which represent part of whole. Example I have taken already, 3 by 4. In 3 by 4, 3 parts when whole is divided in 4 equal parts. 4 is called denominator, 3 is called numerator. And in proper fraction, whose numerator is less than its denominator, that is called the proper fraction. Or you can say a improper fraction is that in which whose numerator is greater than its denominator, that is called the improper fraction. Example 7 by 3, 8 by 5, 3 by 2. And third is mixed fraction.
In mixed fraction, a fraction which can be expressed as a sum of natural numbers and a proper fraction is mixed fraction. Means you have given this type of statement, that is called the mixed fraction, and you have to change into improper fraction it. How? This is called quotients and this is called remainder and this is called divisor. Remainder and this is called quotients. And how to solve it? You have to follow this formula: q multiply divisor plus remainder divide by divisor. Like this. Now you can solve it. 1 multiply 5 plus 2 divide by 5. 5 ones are 5 plus 2 divide by 5. 5 plus 2 7 divide by 5. 7 by 5 is a improper fraction. Means we have here we change from mixed fraction to improper fraction. And like fraction means fractions having same denominator is called like fraction. Means 1 by 7, 2 by 7, 8 by 7, 9 by 7, etc. This is a like fraction. Unlike fraction means when denominators are not same. Unlike fractions. 1 by 7, 2 by 8, 3 by 9, 4 by 10. These are unlike fractions. Decimal fraction means a fraction whose denominator is 10 or a power of 10, that is known as decimal fraction. Means 3 by 10, 2 by 100, 7 by 1000. This is a 10 raised to power 1, 10 raised to power 2 and 10 raised to power 3. Means a fraction whose denominator is 10 or power of 10. Means 10, 100 and like 1000, 10,000, etc. These are called decimal fractions. Simple fraction means a fraction whose denominator is a number other than 10. Denominator other than 10, 100, 1000. That is simple fraction like 7 by 15, 4 by 25, 2 by 30, etc. And these are also known as vulgar fraction. Also known as vulgar fraction. Equivalent fraction means equivalent
fraction means equivalent fractions represent same part of whole. Means like 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8, 5 by 10. Means when we solve these values, these will be equal to 1 by 2. After solving these fractions, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 5 ones are 5, and 5 twos are 10. Means all are equivalent fraction. Now how to solve this equation? You have given 7 multiply 3 by 5. First of all, you have to multiply 7 into 3. 7 3 is the 21. Divide by 5. When we divide it by 5, 5 4 is the 20. This is your remainder, this is your quotients, and this is your divisor. And right here Q R over D means 4 into 1 by 5. This is form of mixed fraction. After solving question, you will write like this if it is given in improper fraction form. Now next, if you have given this type of question, 3 by 4 of 16. 3 by 4 of means multiply 16. 4 ones are 4, 4 fours are 16, 3 fours are 12. This is your answer. This type of equation you should be solved like this. And 1 by 2 of 3 into 5 by 6. First you have to solve this mixed fraction, convert into improper, and instead of writing of, you have to write here multiply. 3 6, 3 multiply 6 plus 5 divide by 6. 1 by 2 multiply 3 6 are 18, 18 plus 5 divide by 6. 1 by 2 multiply 18 plus 5 23 divide by 6. Now you have to check if any number is cut with the denominator with the numerator, then you can cut, otherwise multiply numerator with the numerator, denominator with the denominator. 23 by multiply by 23, 1 23, 6 2s are 12. Now convert it in mixed form. 12 ones are 12, 3 minus 2 1, 2 minus 1. 1 into 11 by 12 is answer. Now next, for example, you have given this type of equation, 2 into 5 by 6 multiply 4. How to solve it? First of all, you have to change mixed fraction into improper. 2 multiply 6 plus 5 divide by 6 multiply 4. 6 2s are 12. 12 plus 5 17 and divide by 6 multiply 4. नाउ चेक, अब आपने चेक करना है कि कौन सा नंबर किसके साथ कट हो रहा है. आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करना है, चाहे वो क्रॉस में हो रहा हो, लेकिन न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं हो सकता. तो ये 4 6 के साथ कट हो रहा है क्योंकि दोनों एक नंबर में आ रहे हैं, एक टेबल में. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. नाउ
multiply 17 multiply 2 34 and divide by 3. Convert into mixed form. 3 ones are 3, 3 ones are 3. 11 इंटू 1/3 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर. For example, you have given equation. Rahul earns rupees 44,000 per month. Per month. He spends 3/4 of his income every month and saves the rest of his earning. Find his monthly savings. आपके पास क्या गिवन है कि राहुल को मंथली कितना अर्न होता है 44,000, जिसमें से वो 3/4 अपनी इनकम का स्पेंड कर देता, खर्च करता हर महीने. तो सेव रहती है रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग. मंथली सेविंग पता करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे इनकम अर्न income earns by Rahul, that is equal to rupees 44,000 per month. Spends of his income, that is 3/4 of his income. That means 3/4 of income कितनी थी उसकी 44,000. 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन 44,000. 4 के साथ ये कट हो जाएगा. 4 1 जब 4 4 1 जब 4 4 0 0 मल्टीप्लाई किया 33,000 आपके पास क्या आ गई उसका खर्चा आ गया, एक्सपेंस आ गया. तो सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस स्पेंड मनी. 44,000 माइनस 33,000 माइनस करके आपके पास कितना आ गया 11,000. ये आपके आंसर आ गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ ए बुक is rupees 117 into 1/2 and find the cost of 8 books. फर्स्ट क्या लिखोगे आप. कॉस्ट ऑफ 1 बुक रुपीज़ 117 इंटू 1/2. इसको सॉल्व कर लो आप. 117 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1. 117 को 2 से मल्टीप्लाई करो
2 7 ज़ा 14 होता है, 1 यहाँ पर आ गया, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 2 1 ज़ा 2 होता है, उसमें 1 प्लस करो, यहाँ पर 235 आ जाएगा। 235/2 ये आपके पास एक बुक की कॉस्ट आ गई। अब आपने 8 बुक्स की निकालनी है, तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स रुपीज़ 235 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 235 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हो गया, 4 3 ज़ा 12 + 2 14, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, तो ये आपके पास 940 आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 1/3 ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन गिवन है आपके पास 1/5, तो कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/5। अब कट तो हो नहीं रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हो, आप ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, आमने सामने नहीं करना है। तो 1 × 1 1, 3 × 5 15, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन इस तरह का गिवन है जिसमें आपको बोला गया मल्टीप्लाई मेथड इम्प्लीमेंट करके इसको सॉल्व करो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपने ये चेक करना है कि कोई वैल्यू एक दूसरे के साथ कट हो सकती है, अगर कट हो सकती है तो कट कर दो, 7 1 7, तो आगे कट नहीं हो रहा है, तो 2/9 आपके पास फाइनल आंसर आ गया जो लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ये वाली वैल्यू गिवन है 81/100 मल्टीप्लाई 6/7। अब चेक करो 81/100 और 6/7 आपस में कब कट होते हैं, 2 3 ज़ा 9, 2 5 0 और 2 5 10, 2 0 0। अगर अब देखो कोई और कट हो सकता है, नो, तो आपने क्या करना है, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 243 आ गया। नीचे वाले को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो, 50 को 7 से, 7 0 0, 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया 350, आपके पास आंसर आ गया फाइनल। ऐसे अगर आपके पास मिक्स्ड और इम्प्रॉपर कंबाइन दिया है या प्रॉपर और मिक्स्ड दिए हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी वो भी सेम है। जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 5/5 इंटू 1/3, तो इस केस में आपने पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करो, 5 × 3 + 1 डिवाइड बाई 3, 3/2 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15, 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2। अब 3 3 से कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 आंसर आ गया आपके पास। जैसे मिक्स फॉर्म को पहले प्रॉपर वे से सॉल्व करना, अपने इम्प्रॉपर फॉर्म में तब सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ गया 1/2 ऑफ 6/5 ऑफ 6/5 और 1/3 ऑफ 4/5, तो इसका मतलब ये अलग वैल्यू है, ये अलग स्टेट मतलब लेफ्ट और राइट लेके चलना है आपने। ठीक है, तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी ग्रेटर फ्रैक्शन है, तो पहले लेफ्ट लिख लो, 1/2 ऑफ 6/5,
1/2 मल्टीप्लाई 6/5, 2 1s 2, 2 3s 6, क्या है आंसर 3/5। फिर राइट साइड वाले का लिख लो 1/3 ऑफ 4/5, इसको सोल्व किया 1/3 मल्टीप्लाई 4/5, कटिंग हो नहीं रही 4/15 आ गया। अब पता कैसे चलें कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो पहले लिखेंगे 3/5 और का मतलब यहाँ पर आपने पहले इक्वल टू का साइन डाल लेना या बॉक्स बना लो, ठीक है। और इधर लिख लो अपना सोल्व करके कितना आया था 4/15। अब इस केस में क्या करना है आपने, दो मेथड है, दोनों में से जो इजी लगे कर लेना। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो 5 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया, यानी कि एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 5 3 ज़ा 15। तो आपने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल बना लो ऐसे 4/15 मल्टीप्लाई, ये 15 आ गया ना, दोनों का डिनोमिनेटर मैंने एलसीएम लिख लिया। अब यहाँ पर 15 कैसे आया, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो 3 ऊपर नीचे लिख लो, 3 को 3 से किया मल्टीप्लाई 9 आ गया। 15 15 कब आएगा 1 के साथ, आप जब मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 आ गया, 15 इंटू 1 15। अब चेक करो कौन डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं और हमें ये पता करना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, सिर्फ आपने न्यूमरेटर को देखना है कौन सा बड़ा है। 9 जो है 5 से बड़ा है और 4 से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे 3/5 इज ग्रेटर देन 4/15, और you can say 1/2 of 6/5 is greater than 1/3 of 4/5, then 1/3 of 4/5 ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। अब कुछ मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है इफ़ द स्पीड ऑफ ए कार is 105 into 1/3 kilometer per hour, and we have to find the distance covered by it in 3 into 2/3 hours। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, पहले तो लिखो स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ कार 105 इंटू 1/3 किलोमीटर, इसको सॉल्व कर लो पहले ही। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 उसमें प्लस करना है, डिवाइड बाई 3। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15 होता है, 1 कैरी हो गया, 3 0 0 0 प्लस 1 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 करना है आपने, 316 आपके पास आ जाएगा, 316 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है। और डिस्टेंस जो कवर होता है उसका टाइम गिवन है हमें 3 इंटू 2/3 आवर्स। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 में 2 प्लस किया 11, 11/3 आपके पास आवर्स आ गई, ठीक है। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी आई थी 316.3 मल्टीप्लाई एंड टाइम आया था हमारे पास 11/3। अब
अगर तो कटिंग हो जाती है कट कर दो, नहीं कटिंग हो रही है तो सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कट नहीं हो रहा है तो 316 को 11 से मल्टीप्लाई करो। 166 111 3 1 ज़ा 3, अगेन 316 743 प्लस 3476 divided by 3 3 is the 9. Now you have to divide uh, this number by 9. 9 3 is the 27. 14 में 7 के 7, 9 8 the 72, 9 6 the 54. Here answer will be 386 into 2 by 9 kilometer per hour. किलोमीटर आएगा, पर आवर नहीं लिखना है, पर आवर हम स्पीड के साथ लिखते हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 386 इंटू 2/9 किलोमीटर। ऐसे आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट of land 29 into 3/7 meter. If its breadth is given 12 into 8/11 meter and we have to find its length, we have to find its area. Find area. First you have to write length, that is equal to 29 into 3/7 meter. Solve equation. 29 into 7, 7 9 is 63, 7 2 is 14 plus 6 20 plus 3 206. 206 divided by 7 meter, and its breadth is given 12 into 8/11 meter. 12 multiply 11. 12 multiply 11, we get 132 plus 8, 140. 140 divided by 11. Now put the formula of area. Area of rectangular plot, that is equal to length into width. लेंथ इंटू विड्थ सॉल्व करके हमारे पास आया था 206 डिवाइड बाई 7, 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 140 बाई 11, 140 बाई 11। अगर तो कोई कट हो रहा है तो कट कर दो, अगर नहीं कट हो रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई करना है। 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 0 0. Now 206 multiply 20, 0. 2 6 is 12, 2 4 2 2 is 4. Now divide by 11. 11 3 is 33. 11 minus 3 8, 2. 11 7 is 77. 12 minus 7 5. 11 4 is 44. Now answer will be 374 into 6 by 11
meter square. This is area of rectangular plot. Now next question, if a cloth cost rupees 120 into 1 by 4 per meter, find the cost of 4 into 1 by 3 meter of his cloth. कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट आप लिखोगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू रुपीज़ 120 इंटू 1/4. सॉल्व करो इसको. 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 400, 12 4 ज़ा 48 प्लस आपने 1 करना है, 481 आ जाएगा. यहाँ पर लिखोगे 481 डिवाइड बाई 4. फिर आपने निकालना है कोस्ट ऑफ 4 इंटू 1/3 मीटर क्लॉथ. तो 481 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है? पहले इसको सोल्व कर लो. 4 इंटू 3 कितना है? 12. 12 में 1 प्लस किया 13. तो यहाँ पर आप लिखोगे 13/3. अब यहाँ पर अगर तो कट होता है काट लो, नहीं तो डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो. तो मेरे पास आ रहा है, आई थिंक कट तो किसी के साथ हो नहीं रहा. तो 481 को आपने 13 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14. तो यहाँ पर 14 आ गया. मल्टीप्लाई 481, 3 5 2 5 4 1 5 6, ये आ गया 6253 डिवाइड बाय 12. अब 12 के साथ डिवाइड कर लो इसको. यह आएगा हमारे पास 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर. तो आप आंसर लिख सकते हो 521 इंटू 1/12 रुपीज़. ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया. नाउ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस. Before going to telling about division of fraction, I am going to tell you how to calculate reciprocal of any number. Reciprocal of any number means डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि 5/2. रिवर्स लिख देना, उसको रेसिप्रोकल कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास मान लो स्टेटमेंट में गिवन है 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3. 2 डिवाइड 2/3 फ्रैक्शन. तो फर्स्ट आपने 2 लिखना है, डिवाइड की जगह पर आपने मल्टीप्लाई का साइन, और जो डिवाइड के राइट साइड पर वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल लिखना है. तो 3/2. मतलब आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 लिखना है. 2 को 2 से कट कर दिया और हमारे पास 3 आंसर आ गया. ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है डिवीजन को. मान लो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है 19/6 डिवाइड 10.
19/6 एज इट लिखोगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई बनेगा और 10 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/10। कटिंग हो नहीं रही, 19 इंटू 1 19 आएगा, 6 इंटू 10 16। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने इसको सॉल्व कर देना। अगर आपके पास मान लो ये स्टेटमेंट ऐसे गिवन है, 3 2 इंटू 3/5, 3 multiply, but before going to implement multiply you have to solve this mixed form. 2 into 5 plus 3 and divide by 5. 3 divide 2 5s are 10, 10 plus 3 13, 13/5. Now take the reciprocal 5/13. कट तो हो नहीं रहा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 are 15 डिवाइड बाई 13. नाउ अगेन divide 13/15, 13 was the 13. Answer will be also in the form of mixed 1 into 2/13. Now I am discuss statement sum. For example, you have given 11 small ropes. 11 small ropes are cut from 7 into 1/3 meter long rope and find the length of each of small rope. तो कैसे सोल्व करोगे? पहले लिखोगे आप लेंथ ऑफ लॉन्ग रोप 7 इंटू 1/3 मीटर, सॉल्व किया, 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22/3 मीटर। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्मॉल ropes cut, that is 11. Now solve it. Length of small rope, each small rope 22/3 डिवाइड 11, क्योंकि आपने डिवीज़न करनी ना उसकी, 22 बाई डिवाइड मल्टीप्लाई 1/11, 11 was the 11, 11 2 the 22, 2/3 meter. And in points you can see 3 0 0, 3 6 18, again 3 6 18, near about you can say it will be 0.67 meter. Now next topic is comparison of decimal numbers. For example, you have given 3.86 or 2.38. How to compare? First of all, you should be keep in mind that after point, after decimal, digit should be equal. Equal means number of position of digits should be equal, not same number. Here you can see there that 3 is greater than 2,
and 86 is also greater than 38. So we can say 3.86 is greater than 2.38. And in another case 5.32 or 5.3215. 5.32 we have take here 2 digit more in form of 0, क्योंकि आपको दोनों साइड्स के डिजिट सेम रखने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 0 ऐड कर दिए, क्योंकि इस साइड पर 4 डिजिट्स हैं। अब कंपेयर करो, 5 के इक्वल है बट 3200 बन रहा है, इधर 3215 बन रहा है, तो कौन सा नंबर ज़्यादा हुआ? इधर वाला। तो आपने यहाँ पर सिंबल कौन सा इम्प्लीमेंट करना है? ये वाला। ठीक है, ऐसे आपने डेसिमल को सॉल्व करना है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टेटमेंट गिवन है जिसमें बोला है उसने एक्सप्रेस 7 रुपीज़ 5 पैसा इन रुपीज़ लिखो यूजिंग डेसिमल। तो कैसे लिखोगे? ₹7 और 5 पैसे को रुपीज़ में कैसे लिखोगे? 5 बाय, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100, तो यहाँ पर 100 लिख लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे? प्लस की जगह पर आपका पॉइंट सिंबल आ जाएगा, और 5/100 यानी कि 5 लिखा, कितनी ज़ीरो है यहाँ पर? 1 2, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 2 डिजिट कैसे बनेंगे? इसके आगे हमें क्या लेना पड़ेगा? एक 0। तो ऐसे आपके रुपीज़ में कन्वर्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.472। आपने इसकी प्लेस वैल्यूज़ बतानी है हर एक डिजिट्स की। जैसे पॉइंट से पहले के जो नंबर है उनको हम ऐसे लिखेंगे, ये 3 की प्लेस वैल्यू, 3 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या आएगी? इज़ 3, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पर है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 multiply 1/10, that is 4/10। 7 की प्लेस वैल्यू 7 multiply 1/100, एंड 2 की प्लेस वैल्यू 2 multiply 1/1000। जैसे जैसे राइट की तरफ आप मूव करोगे 0 इंक्रीज होती जाएगी डिनोमिनेटर में। ये आ गई 7/100, यहाँ पर आ गया 2/1000। ऐसे आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है। मान लो आपके पास लेफ्ट साइड पर वैल्यूज़ और आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 5 2, तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 2 की प्लेस वैल्यू आएगी 2 मल्टी इधर आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर इधर हमने 1/10 के साथ कर किया, 20 आ जाएगी प्लेस वैल्यू। 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 5 × 100, 500। कैसे पता चला? ये आपका वंस प्लेस है, टेंस प्लेस 10, 100 प्लेस 100, 1000 प्लेस 1000, 10,000 प्लेस 10,000। मल्टीप्लिकेशन उनके साथ करनी है। इधर आपने ये आपके पास 1/10, 100th ऐसे बोलेंगे, इसको हम 1000th ऐसे बोलेंगे। 10 नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ
डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 1.3 मल्टीप्लाई आपने 7 के साथ करना है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? एक तो तरीका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका हमारे पास क्या है, पॉइंट को हटाकर फिर भी कर सकते हो। सीधे में क्या करना है, आपने पहले पॉइंट नहीं लिखना है। 13 इंटू 7 आपने मल्टीप्लाई किया, कितना है आपके पास, 13 7 91। फिर उसके बाद 1.3 जब आप लिखोगे 7 के साथ, तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही है ना, तो 91 में भी एक डिजिट राइट हैंड साइड से आपने छोड़ना है और पॉइंट लगा देना। तो ऐसे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मान लो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है 0.02 मल्टीप्लाई 15। अब इसको कैसे करोगे? 0.02 मल्टीप्लाई 15। आपने दिमाग में इसको नहीं रखना, इसको इग्नोर कर दो अभी। 15 2 ज़ा 30। अब ये चेक करो, अब इसको यहाँ से इग्नोर हटा दी। अब ये देखो कितने डिजिट है, 1 2। तो क्या करोगे आप, 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट डाल दोगे, ऐसे आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया है 1.25 मल्टीप्लाई 3.1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? पहले तो आपने 1.25 मल्टीप्लाई 3.1 यानी कि सिंपल इनको मल्टीप्लाई करो ऐसे, 5 2 1 3 5 15 3 2 6 7 3 1 3। ये आपके पास आंसर आ गया 3875। अब चेक करो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3 और पॉइंट डाल दो, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अगर आपके पास ऐसे जिनमें 10 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस केस में आपने क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर करो। 100 की जितनी जीरोज़ है, फर्स्ट वैल्यू जो दी है उसके साथ डाल दो। फिर उसके पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, 1 2 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल दो। वैसे तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर लिखना है लिख भी सकते हो। तो 101 आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 0.02 मल्टीप्लाई 1000 दिया है। आपने क्या करना है, इनको तो इग्नोर कर दो अभी फ़िलहाल। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और साथ में जितनी जीरो दी है लिख दो। अब क्या करना है, जो पॉइंट जहाँ दिया है पॉइंट के साथ देखो कितने डिजिट है, 1 2, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट डाल दो और ये वैल्यू ख़त्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20। ऐसे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई भी नंबर ले लो, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन उसकी होगी। ठीक है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट वाले सम करने जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है ए पीस ऑफ वायर इज डिवाइडेड into 15 equal parts, 15 equal parts if the length of one part is 2.03 meter, then find the total length of the wire। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास एक पीस ऑफ वायर है, आपके पास एक टुकड़ा है वायर का, जिसको अपने 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और एक वायर की जो लेंथ, पार्ट की लेंथ है वो 2.03 है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है। क्या करोगे, पहले लिखोगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ए वायर
that is given 15. वन फिर लिखोगे लेंथ ऑफ वन वायर्स पार्ट इक्वल टू 2.03 मीटर. तो लेंथ ऑफ 15 पार्ट्स इक्वल टू 2.03 मल्टीप्लाई 15 करोगे. नॉर्मली आपने मल्टीप्लाई पहले 15 के साथ करना है. 15 3 ज़ 45. तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5 4 4 5 एंड 15 2 ज़ 30 3045. कितने डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2. तो 1 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट डाल दो और आपके पास या क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी 15 पार्ट्स की 30.45. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ is rupees 75.80. Find the cost of 4.75 meter cloth. क्या लिखोगे पहले आप cost of 1 meter cloth rupees 75.80. Cost of 4.75 meter cloth is equal to rupees 75.80 मल्टीप्लाई 4.75. अब आपने क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करोगे 75.80 को 4.75 से. 7580 मल्टीप्लाई 475. फाइव 0 5 8 40 5 5 25 प्लस 4 29 7 5 35 प्लस 4 39. सॉरी अगेन रिपीट 5 0 0 5 4 40 4 कैरी 5 5 25 प्लस 4 29 2 कैरी 5 7 35 plus 2 37. Now multiply with 7. 7 0 0 7 8 56 6 यहाँ पर आएगा 5 यहाँ पर कैरी होगा 7 5 35 plus 5 40 4 कैरी करोगे 7 7 49 plus 4 53 आएगा. नाउ जब आप थर्ड लाइन में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर 2 क्रॉस आ जाएगा 4 0 0 4 8 32 4 5 20 20 plus 3 23 4 7 28 plus 2 30. ये आएगा आपके पास 0 0 9 6 15 8 और 2 10 4 और 3 7 plus 3 4 3 7 plus 3 10 1 कैरी 6 3. ये आ गया मेरे पास 36000500. डिजिट चेक करो कितने हैं पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4. तो यहाँ पर पॉइंट आ गया ये 0 ख़त्म होगी. आपके पास आंसर फाइनल आ गया 360.05 पैसा. ठीक है तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है.
अगर आपने एवरेज निकालनी हो, फाइंड एवरेज ऑफ 1.3 प्लस 3.2 प्लस 1.7 प्लस 0.6, तो कैसे निकालोगे इसकी? तो यहाँ पर प्लस के सिंबल नहीं है, कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज निकालने का वे क्या है? एवरेज लिखोगे, सभी नंबर्स को प्लस करोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है इसमें, उसको ले 1 2 3 4 आइटम्स हैं। सभी को प्लस कैसे करना है? 3 को 2 में प्लस किया 5, 5 में 7 प्लस किया 12, 12 में 6 प्लस किया 18, 18 का 8 लिख लिया, पॉइंट एज इट डाल दिया क्योंकि प्लस में सेम जगह पर पॉइंट आएगा। 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 0। ठीक है, 4, अब 4 के साथ डिवाइड करो, 68 लिख लो, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, कितना आ गया? 17। कितने पॉइंट के बाद डिजिट है? 1, 1 के बाद डिजिट आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है ए कार ट्रेवल्ड 79.2 किलोमीटर in 4.5 liters of petrol. Find the distance. Find the distance traveled by the car in 1 liter. In 1 liter पेट्रोल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये कार है जो 79.2 किलोमीटर 4.45 लीटर में ट्रैवल कर सकती है, तो 1 लीटर में बताना है हमें। तो पहले लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 4.5 liters of petrol. (79.2 kilometer) distance traveled in 1 liter of petrol. 79.2 divided by 4.5. 79.2 डिवाइड बाई 4.5। अब इसको डिवाइड कैसे करना है? क्या करोगे? पहले तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, आपने इसको सॉल्व, आपने ऐसे लिखना है 79.2 डिवाइड बाई 4.5 था ना। अब देखो पॉइंट के बाद डिजिट सेम जगह पर है, इसका मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ख़त्म अभी। क्लियर? अब 45 को इससे डिवाइड करो, 45 1 ज़ा 45, 9 में 5 गए 4, 7 में 4 गए 3
और 2 नीचे ले लो, फिर 7 पर जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 7, 7 5 से 35, 7 4 से 28 प्लस 1 31, यह आ गया 315। 12 में 5 गए 7, 3 में 1 गए 2, फिर आपने पॉइंट लेना है, 0 नीचे ली, पॉइंट यहाँ पर आपके 6 पर जा सकता है, और ये 270 आएगा एग्जैक्टली। आपके पास आंसर आ गया 17.6 किलोमीटर। ऐसे आपने अगर पॉइंट्स में डिवीज़न कर रहे हो तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही हमारे पास 2 क्वेश्चन और करवा रही हूँ जो स्टेटमेंट्स वाले ही हैं, हेल्प कर हो जाएगी आपकी। आपके पास गिवन है 25 स्टील चेयर्स वर परचेज्ड बाय ए स्कूल फॉर रुपीज़ 11,883.75 and find the cost of one chair। आपके पास 25 चेयर्स की कॉस्ट गिवन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 25 स्टील चेयर्स गिवन है रुपीज़ 11,883.75। कॉस्ट ऑफ वन स्टील चेयर 11,883.75 डिवाइड बाई 25। अब आपने क्या करना है, 11,883 पॉइंट को ऐसे ले लो, 25 पर गया, 25 4 ज़ा 100। अब नेक्स्ट किस पर जाएगा, 6 25 8 पर करके देख लेते हैं। 8 पर करने पर 200 आएगा, इसका मतलब नहीं जाएगा, तो किस पर जाएगा, 7 पर करके देखो। 7 से मल्टीप्लाई किया 175 आ गया, 175। 8 में 5 गए 3, 8 में से 7 गए 1, 3 नीचे ले लिया। फिर उसके बाद 25 5 ज़ा 125, 30 में 5 गए 8, और ये 7 नीचे आएगा, बट उससे पहले अपने पॉइंट ले लेना है। 25 3 ज़ा 75, यहाँ पर 2 रह गया, और 8 में 7 गए 1, और ये वाला 5 नीचे ले लो। 25 सा 125, you can see here answer will be 475.35 rupees। okay, now next question of this videos, and this is the last question। A car covers a distance of 276.75 kilometer in 4.5 hours। What is the average speed? What is the average speed of the car? पहले लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 276.75 kilometer, and time is given 4.5 hours, and we have to find average speed
and for formula will be distance divided by time. 276.75 divided by 4.5 and this question will be solved. पॉइंट को हटाया आपने, यहाँ पर आ गया 100, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, ज़ीरो को ज़ीरो से कट किया, आपके पास बचा 276.75 डिवाइड बाई 450. नाउ यू कैन डिवाइड डायरेक्टली और you can cut 450. It will be divided by you can take here 450 multiply 6 0 5 6 are 30 2 6 4 are 24 plus 3 27 2700 765 1 पर जाएगा, यहाँ पर 7 में से 5 गए 2, 6 में 4 गए 2. नाउ यू कैन टेक पॉइंट, you can take here 0 450 5 500 5 5 is 25 5 4 is 20 plus 2 22 0.52250. You can see answer will be 61.5 किलोमीटर पर आवर. ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया. ठीक है जी. In this video I have discussed fraction and decimal. If you like this video, please like and share my channel with your friends and say to subscribe my channel so that they can take benefits of next upcoming videos related to your math class. Thank you.